Good evening, ladies and gentlemen. Today I am very excited because today I am going to share one story with you. एक ऐसी story which has stayed with me for several years, for many years. I came across this story in 2001 and it really motivated me and kept me going. और मेरे को बहुत ही मजा आता था जब मैं ये स्टोरी सुनता था. And then finally in 2007 I did this story for one of our leadership meets in Mohali. एक लीडरशिप मीट थी जिसमें मैंने ये स्टोरी करी और जो जो वहां पर था वो सबको ये स्टोरी छू गई और उनको अभी तक वो ये स्टोरी याद है और वो मेरे को कहते रहे कि इसको रिपीट करो सर, एक बार दोबारा होनी चाहिए, ये स्टोरी दोबारा होनी चाहिए, टुडे इज द डे. बट टाइम निकलता गया, मेरे नोट्स इधर उधर हो गए. मैंने कहा पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे. दोबारा से नोट्स बनाने पड़ेंगे. सुस्ती है, पहली बार करने में बड़ा जोश होता है, दूसरी बार करने में अलग चीज होती है. बट pressure was coming from everyone who attended that session in 2007. Finally, I decided to find my notes. And you know what happened? मैंने नोट्स ढूंढने शुरू किए और पहला ही फोल्डर जो मेरे हाथ में आया उसमें मेरे पास वो नोट्स आ गए. लेट मी शो यू दैट फोल्डर एंड दोस नोट्स. So I found this folder, and in this folder I came across these notes which I instantly recognized. मैंने recognize किया कि ये तो वही हैं Today's the Day के notes. और इसमें ये सब उस टाइम के 2007 के नोट्स मेरे को मिल गए. And today I compiled these notes and I thought I will do this story for you. For you, the qualifiers of this challenge meet. Let's go ahead. Let me share the screen and we move with this story and enjoy this story as much as I have enjoyed it for the last more than 24 years. Here is my screen for you. So, a true story of perseverance, passion, and treasure, presented by Anil Narang. सेबेस्टियन फ्लोरिडा यूएसए में एक म्यूजियम है जिसका नाम है मेलफिशियन मैरीटाइम म्यूजियम. And there is a rock which welcomes visitors. Written on the rock is "Today is the day." What is the story? Who was Mel Fisher? Mel Fisher was born in August 21, 1922 in Indiana. He served in the US military in World War II, got out of military and got enthusiastic about the sport of scuba diving. He ran the first dive shop in California. He was a pioneer in recreational scuba diving in the US. तो वो यूएस मिलिट्री में सर्व करते थे वर्ल्ड वॉर टू में. वहां से बाहर आए और उन्होंने अपना स्कूबा डाइविंग का स्पोर्ट करना शुरू कर दिया और उसकी एक दुकान खोल ली और वहां स्कूबा डाइविंग सिखाने लगे और बहुत सारे लोगों को स्कूबा डाइविंग उन्होंने सिखाई और इस रिक्रिएशनल स्पोर्ट के वो पायनियर थे यूएस में. ही एंड हिज वाइफ Dio Fisher starts diving to find shipwrecks because life starts getting boring. Oh, he was very enthusiastic person. तो उनको लगा कि लाइफ कुछ बोरिंग होने वाली है, तो वो और उनकी वाइफ डियो फिशर ने स्टार्ट किया डाइविंग टू फाइंड शिपरेक्स. जो जहाज डूब जाते हैं उनको ढूंढना शुरू किया समुद्र में जाके. Came across a Spanish book that listed all the ships that had sunk. Came across a story in the book. Story said, on September 4th, 1622, 28 ships sailed from Havana, Cuba, for Spain. These ships were loaded with gold, silver, emerald, copper, tobacco and other valuables. तो बहुत ही वैल्यूएबल चीजें लेके 4 सितंबर 1622 को 28 जहाज चले हवाना, क्यूबा से स्पेन की तरफ. Hit by hurricane. Only after 2 days did the fleet get hit by hurricane. एक बहुत जबरदस्त तूफान आया, समुद्री तूफान, और उसमें हिट हो गए ये 28 के 28 जहाज. The storm was sudden and violent, with winds so strong that ships were torn apart and scattered across the ocean floor. तो पूरे समुद्र के फ्लोर में जाके डूब गए और बुरी तरह से ध्वस्त हो गए. 8 out of 28 ships were destroyed, including the most famous Nuestra Senora de Atocha एंड सेंटा मार्गरीटा. तो ये 2 जहाज थे, ये भी उनमें डूब गए. 8 जहाज डूब गए 28 में से. 8 out of 28 were destroyed, including these 2. These ships sank in deep water near Florida. तो डीप वाटर, पानी में बहुत ही गहराई में जाके 55-56 फीट से ज्यादा नीचे जाके डीप वाटर में जाके फ्लोरिडा के पास वहां डूब गए. Lives lost, treasure sank. The Atocha had 265 people on board, but only 5 survived.
The Atocha alone was carrying 24 tons of silver, 125 gold bars, 70 pounds of emerald, silver coins, precious artifacts, jewelry, and royal treasure. All of it was lost to the sea. सब कुछ इस समुद्र में जाके गुम हो गया. Recovery success within days of the hurricane, the Spanish launched desperate hunt, sending breath-holding divers into the dangerous waters. They recovered much, but Atocha, the richest ship of them, remained lost in the deep, a mystery unsolved for over 300 years. 300 साल बीत गए. स्पेनिश ने बहुत हंट करा. उन्होंने उस टाइम में इतना जबरदस्त ये ऑक्सीजन लेके नीचे जाने वाला फंडा नहीं था. 1622 की बात है. टेक्नोलॉजी नहीं थी. तो वो ब्रेथ होल्डिंग, जो सांस रोक के जो डाइवर आते थे, जिनको उन्होंने हायर किया, उनको भेजा नीचे. जितना नीचे वो जा पाए गए, और उन्होंने बहुत सारा सामान को रिकवर कर लिया. लेकिन अटोचा, जो कि सबसे रिचेस्ट था जहाज, इसका कुछ पता नहीं लगा और इसको रिकवर नहीं कर पाए. 300 साल बीत गए. 1622 से 300 साल बीत गए. 300 साल तक ये जहाज नीचे डूबा रहा. स्पेनिश बुक जिसने भी लिखी, उसने क्या लिखा? इन स्पेनिश ट्रेजर बुक 5 crosses marked द अटोचा, नॉट वर्ड्स, जस्ट सिंबल्स ऑफ अनटोल्ड वेल्थ. तो जहां पे अटोचा की कहानी लिखी थी, बहुत सारे जहाज डूबे थे जिनकी कहानी लिखी थी वहां पे स्पेनिश बुक में, लेकिन अटोचा के सामने 5 क्रॉस लगे हुए थे, जो बता रहे थे, कुछ वहां लिखा नहीं था, बस 5 क्रॉस लगे हुए थे. वर्ड्स नहीं थे, बट इट वॉज ए सिंबल ऑफ अनटोल्ड वेल्थ. इट वॉज द रिचेस्ट शिप इन द फ्लीट. 24 tons of silver, 125 gold bars, 70 pounds of emeralds, 1200 silver ingots, thousands of gold and silver coins, jewelry and religious artifacts. बहुत ही उसमें खजाना था, और वो जहाज बिल्कुल नहीं मिला, और उसका कुछ नहीं मिला. 300 साल बीत गए. स्पेनिश किताब में उसके आगे 5 क्रॉस लगे हुए थे. मेल फिशर. In 1969, Mel Fisher decided to pursue this treasure 347 years after the ship sank. 347 साल बाद, जबकि यह शिप डूबा था 1622 में, 1969 में मेल फिशर डिसाइडेड टू परस्यू दिस ट्रेजर, कि मैं इसको निकालूंगा. ही सेल्स हिज डाइव शॉप, ही सोल्ड एवरीथिंग ही हैड. जो उसके पास था सारा उसने बेच दिया, पैसा इकट्ठा किया. बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला उसको. फ्रेंड्स, नेबर, रिलेटिव, सब लोगों ने उसको क्रिटिसाइज किया. तू बेवकूफ आदमी है, तू क्या ढूंढेगा? 347 साल हो गए, जहाज डूब गया. बहुत लोगों ने ढूंढा, गवर्नमेंट्स ने ढूंढ लिया, बड़े बड़े डाइवर चले गए, कुछ नहीं हुआ, किसी को नहीं मिला. नो टेक्नोलॉजी. द ओशन इज अ बिग थिंग. बहुत बड़ा होता है समुद्र, और कुछ पता नहीं था वो कहाँ गिरा है, कहाँ डूबा है. 3 साल तक वो ढूंढना शुरू किया. 3 साल तक ढूंढते रहे. 3 साल के बाद उनको समझ में आई. वो कुछ नक्शे बनाते थे, नक्शों के ऊपर स्पॉट लिखते थे, स्पॉट बनाते थे, और जहां जहां कवर होता रहता था, वहां उस मैप के ऊपर फिजिकली, वहां पे कोई उस टाइम जीपीएस नहीं था, गूगल नहीं था, और वहां पे निशान लगा के वो उसको कवर करते थे कि हमने समुद्र का कौन सा एरिया कवर कर लिया और कहाँ कहाँ नहीं है. तो जहां पर उनको बहुत ज्यादा शक था, जहां वो ढूंढ रहे थे, 3 साल के बाद उनको पता लगा कि यार ये गलत जगह है, हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं. 3 ईयर तब तक बीत चुके थे. 6 years later, July 20, 1975, Mel Fisher tragically lost his eldest son, Derek Fisher, who was 21 years old, and his newly married wife, Angel Fisher, who was 19 years old. तो 20 जुलाई 1975 को उनका बेटा और उनकी डॉटर इन लॉ दोनों उन्होंने लूज किए, दोनों खत्म हो गए. Also lost in the accident was डाइवर रिक गेज, ए क्लोज फैमिली फ्रेंड. एक उनका क्लोज फैमिली फ्रेंड था, वो भी डाइविंग करता था, वो भी लूज हो गया. दे डाइड व्हेन देयर साल्वेज बोट कैप्सिज्ड एंड सैंक ड्यूरिंग द स्टॉर्म. मोस्ट ऑफ हिज ओरिजिनल टीम क्विट. अब जब वो डूब गए और उनका उनका बेटा चला गया, तो उनकी जो ओरिजिनल टीम थी उन्होंने छोड़ना शुरू कर दिया. वो कहे यार छोड़ो, हम भी मरेंगे यहाँ पे, निकलने शुरू हो गए. उन्होंने जो टीम बनाई थी उन्होंने उसको छोड़ दिया. दे सेड मेल इज क्रेजी. His competitors said he is fake. झूठा है ये बंदा. But Mel was committed to his dream. He did not give up. That ship sank and we are going to find it. वो जहाज डूबा है ना, हम उसको ढूंढेंगे. After all, it was also his son's dream. वो जो डर्क फिशर था, उसका भी तो सपना था, बहुत बड़ा सपना था, और वो भी बहुत लीड कर रहा था उसको ढूंढने के लिए. उन्होंने कहा मैंने उसको खो दिया है, अब तो ये जहाज तो मैं ढूंढूंगा, क्योंकि ये डूबा है तो इसको मैं जरूर ढूंढूंगा. 6 साल के बाद, after 6 years, they found an anchor, then found a gold chain and 2 gold bars.
तो 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उनको ये कुछ चीजें मिली। जैसे ही मिली, गवर्नमेंट आ गई। गवर्नमेंट केम एंड कॉन्फिस्केटेड। उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा ये तो हमारी हैं। द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा प्लेस्ड एजेंट्स ऑन मेल फिशर साल्वेज बोट। उसकी बोट के ऊपर अपने बंदे लगा दिए, ये देखते हैं इनको क्या मिलता है, क्या ढूंढते हैं। दिस लेड टू ए लॉन्ग लीगल बैटल बिटवीन मेल फिशर एंड स्टेट। मेल फिशर ने केस कर दिया गवर्नमेंट के ऊपर कि आप तो 347 साल से नहीं ढूंढ पाए, और आज मैंने ढूंढना शुरू किया है, तो ये आपका कैसे होगा खजाना? ये खजाना तो मुझे मिलना चाहिए। After 8 years of courtroom fights, the US Supreme Court eventually ruled in Mel Fisher's favor in 1982, declaring that the treasure belonged to his team and him. 8 साल के बाद, लड़ाई लड़ने के बाद, कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि ये मेल फिशर को ही मिलना चाहिए, ये उसी का हक है, उसी को मिलेगा। ऑलरेडी 13 years had passed since Mel Fisher started operations in 1969. 1969 में उसने ऑपरेशन शुरू किए थे, और 1982 1982 आ गया था। ऑलरेडी 13 साल बीत गए थे, और अब क्या पोजीशन थी? कुछ एक छोटा सा सामान मिला था, लेकिन गवर्नमेंट से बैटल हुई, और पूरी बैटल फाइट करके ये हो गया कि अगर अब कुछ मिलेगा तो मेल फिशर का ही होगा। Pirates and competitor with automatic guns rammed into the boat tried to scare him away. पायरेट्स आ गए, जो समुद्री लुटेरे होते हैं वो आ गए। कुछ कॉम्पिटिटर थे जो और भी छोटी मोटी जहाज जो डूब जाते थे, शिपरैक्स, उनको ढूंढते थे, वो और भी ज्यादा एक्सपर्ट थे। तो उनको भी लगा यार ये ढूंढते जा रहे, इसको यहाँ से निकाला जाए। उन्होंने अपनी गन्स लेके आए और उन्होंने कहा कि यार इसको भगाया जाए यहाँ से। लेकिन इसने, मेल फिशर ने भी 24/7 पहरा लगाना शुरू कर दिया अपनी बोट के ऊपर। Bobby Jordan, an early partner in Mel Fisher's treasure hunting operation, ran off with some of the treasure, reportedly gold bars that had been recovered during the early phase of the search. This betrayal deeply hurt. बॉबी जॉर्डन एक बहुत ही क्लोज मेल फिशर का एसोसिएट था, और वो शुरू से इसके साथ, इनके साथ, मेल फिशर के साथ बॉबी जॉर्डन भी वो जो सर्च ऑपरेशंस थे उसमें काम कर रहा था। लेकिन उसने सोचा कुछ नहीं मिलना मुलना, जो मिला है उसी में से कुछ लेके भाग जाओ। तो वो गद्दार हो गया और कुछ गोल्ड बार लेके भाग गया। तो मेल फिशर ने बताया अपनी कहानी में कि इसने मेरे को बहुत डीपली हर्ट किया, और मुझे लगा कि यार ये तो अपना बंदा ही इस तरह कर गया, बहुत बुरा हुआ। Mel Fisher, both personally and professionally, was deeply hurt. So several reasons to quit. अब तक तो छोड़ देना चाहिए, इतने साल बीत गए, कुछ उम्मीद नहीं बन रही है। He was diagnosed with terminal cancer. Mel Fisher was diagnosed with cancer. टर्मिनल कैंसर, उसको बोला गया कि यार ये तुम्हें कैंसर हो गया, इसी से तुम्हारी डेथ हो जाएगी। लॉस्ट हिज सन एंड डॉटर इन लॉ। अपना बेटा खो दिया, डॉटर इन लॉ खो दी। न्यूज़पेपर सेड ही इज फेक। लीगल बैटल विद गवर्नमेंट टुक 8 years. So many reasons to quit. He did not give up on his dream. But then finally some people started admiring him. He was a known figure. अब तक बड़ा मशहूर हो गया। कुछ लोगों ने उसकी कहानियां पढ़ी, जबकि उसकी कहानियां जो न्यूज़पेपर में आती थी उसके अगेंस्ट उसको फेक बताया जाता था। लेकिन कुछ लोग उसे एडमायर करने लगे, यार कमाल का बंदा है, ये लगा हुआ है, ये ढूंढ लेगा। यही होता है, जब बंदा लगा रहता है तो कुछ लोग डेफिनेटली एडमायर करने लग जाते हैं। Jimmy Buffett, the famous musician, was inspired by Mel Fisher's adventurous and spirit and relentlessness of the treasure hunt. जिमी बफेट एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन थे। वो बहुत इंप्रेस हो गए मेल फिशर से, उनकी आपस में बहुत दोस्ती हो गई, एक दूसरे को इंस्पायर करने लग गए। जिमी बफेट गिटार बजाते थे और गाना गाते थे, और इसकी बोर्ड पे आ जाते थे रेगुलरली, और इसको इंस्पायर करते थे और इसको इनकरेज करते थे। तो कोई ना कोई इनकरेज करने वाला बंदा भी मिल जाता है। लेकिन क्रिटिक्स अपनी जगह पे लगे हुए थे और क्रिटिसाइज कर रहे थे। मेल फिशर ने एक स्लोगन ढूंढा। द होल स्टोरी नाउ कम्स टू द पॉइंट which everybody remembers in our team also. Today is the day. Mel Fisher ने एक नई टीम बनाई. He built a new team. To keep the new team motivated, he gave his team a slogan, today is the day. Every day they will get up in the morning, today is the day, we will find the treasure today. हर रोज सुबह उठते थे और ये कहते थे कि आज ही हमें वो खजाना मिल जाएगा। हर रोज सुबह वो उठते थे, सारी टीम उठती थी, और सुबह ही एक स्लोगन रिपीट करते थे इकट्ठे एक दूसरे के साथ, today is the day, today we will find the treasure. Mel Fisher and his team famously wore shirts printed with phrase today is the day. Mel Fisher ने shirts, t-shirts बनवाई जिसके ऊपर लिखा था today is the day. It was Mel's daily mantra and a symbol of his unwavering optimism.
This slogan is a part of Mel Fisher's legacy. आज मेल फिशर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी लीगेसी है, और उस लीगेसी में बहुत सारा ट्रेयर भी है, लेकिन एक स्लोगन भी है, टुडे इज द डे, जो कि वहां मेल फिशर स्टेडियम के बाहर, मेल फिशर म्यूजियम के बाहर एक रॉक के ऊपर लिखा गया है। जब कोई वहां विजिट करने जाता है तो सबसे पहले उसी स्लोगन को पढ़ता है, टुडे इज द डे। और ये मंत्र उन्होंने बनाया और अपनी टीम को मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि आज ही वो दिन है, आज हमें ये खजाना जरूर मिलेगा। Today is the day Mel Fisher and his team finally found the Atocha's mother lode on July 20, 1985, exactly 10 years, on the same day after the tragic death of his son Doug and daughter-in-law Angel in 1975. 1975 में उसी दिन उसके बेटे और डॉटर इन लॉ की डेथ हुई थी, और उसी दिन 10 साल के बाद 20 जुलाई 1985 1985 को उन्हें एटोचा का मदर लोड, जहां पे मेन खजाना उनका गिरा था, वो उनको मिल गया। एंड ये 16 ईयर आफ्टर दे स्टार्टेड ऑपरेशन, 16 साल हो गए थे ऑपरेशन करते हुए, ये ढूंढते हुए, और 16 साल के बाद ये उनको ट्रेयर मिला। द ट्रेयर वाज वैल्यूड एट ओवर 400 मिलियन at the time and came from the Spanish ship Nuestra Senora de Atocha, which sank in the hurricane in 1622। जो 1622 में खजाना डूबा था, वो जाके उनको मिला 20 जुलाई 1985। This discovery became one of the most valuable and famous treasure finds in the history, a dream realized after 16 years of searching, court battles, betrayal and deep personal loss। 16 साल के बाद ये खजाना उनको मिला, और जब ये मिला तो उस वक्त मेल उस बोट में जिससे वो ढूंढ रहे, सैल्वेज वेसल जिससे वो ढूंढते थे, उस पे नहीं थे। एज सुन एज डाइवर ग्रेग वारहम, जो कि वहां ढूंढ के लाए थे, सरफेस्ड विद द न्यूज, और उसने ऊपर आके बोला, पुट अवे द चार्ट्स, वी हैव फाउंड द मदर लोड। ये चार्ट वार्ट हटा दो यहां से, इनको फेंक दो, अब इनकी जरूरत नहीं है। मदर लोड हमें मिल गया है, जहां पर वो जहाज डूबा था वो जगह हमें मिल गई है। The team on the Mel salvage vessel burst into celebration. Celebration होने लगी। They popped champagne bottles, hugged, cried, and called Mel Fisher, who was not on the boat at that exact moment. The team saw this as powerful spiritual sign, and the moment filled with deep emotions. Emotional इसलिए भी था क्योंकि उसी दिन उसी वक्त उनके बेटे को उन्होंने खोया था 10 साल पहले। मीडिया फ्रेंजी, अब मीडिया एकदम उल्टा हो गया। क्या है कि क्रिटिक जो क्रिटिसाइज करते हैं, जब ड्रीमर जीत जाता है तो फिर उसके फेवर में हो जाते हैं। न्यूज ऑफ द डिस्कवरी हिट द हेडलाइंस अराउंड द वर्ल्ड। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वर हेल्ड एंड मेल फिशर बिकेम एन इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। अब एकदम से वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो गए। ही वॉज ऑफन सीन होल्डिंग अप गोल्ड बार्स एंड कॉइन्स, ऑलवेज विद a smile and the phrase, today is the day। फाउंडिंग ऑफ द मेल फिशर मैरीटाइम म्यूजियम, उसके बाद उन्होंने बनाया मेल फिशर मैरीटाइम म्यूजियम, जहां पे लोग जाके वो सारी चीजें देखते हैं। टू प्रिजर्व एंड डिस्प्ले द ट्रेजर्स एंड द आर्टिफैक्ट्स, मेल एंड हिज फैमिली एस्टैब्लिश्ड द मेल फिशर मैरीटाइम म्यूजियम इन द की वेस्ट, फ्लोरिडा। इट बिकेम ए सेलिब्रेशन नॉट जस्ट ऑफ द ट्रेजर बट ऑफ हिस्ट्री, परसिवियरेंस एंड द ह्यूमन स्पिरिट। सेलिब्रेशन विद जिमी बफेट, जिमी बफेट आ गए वहां पे, उन्होंने अपनी गिटार लेके आए और उन्होंने गाना गाया, और वहां पे बहुत पार्टियां हुई। मेल फिशर्स गुड फ्रेंड जिमी बफेट, हु वाज इंस्पायर्ड बाय हिज स्टोरी, celebrated with the crew. Buffett even supported the museum and its mission later. In short, the victory was celebrated with champagne, tears, headlines, legacy building, and most of all, joy born of unshakable belief. अनशेकेबल बिलीफ था उनका, और उसी में से ये जॉय पैदा हुआ था। अनशेकेबल बिलीफ की वजह से वो ये सब कुछ ढूंढ पाए, और उसी की वजह से वो ढूंढने के बाद ये सारी पार्टी और ये जो जॉय है उसी में से निकला था। इज द हंट स्टिल ऑन? यस, ऑनगोइंग डिस्कवरीज इवन आफ्टर 40 years। 40 साल हो गए हैं, आज भी वहां पे खजाना मिल रहा है। Still searching for Atocha's stern back end of the vessel। बैक एंड वेसल का अभी तक नहीं मिला है। बैक एंड जो होता है वेसल का, वहां पे कैप्टन बैठता है, और वहां पर बहुत सा खजाना होने की उम्मीद है, जो आज तक अभी तक नहीं मिला। अभी तक ढूंढते हैं। जब उनको कुछ भी मिल जाता है तो वो एक मेल डालते हैं, जिस दिन भी उनको कुछ मिलता है, उस मेलिंग लिस्ट में मैं हूं, तो वो मेल मेरे पास भी आती है, और मेरे पास उसकी फोटोग्राफ्स आती हैं कि आज क्या मिला है। अभी तक वो ढूंढते जा रहे हैं, उनको मिलता जा रहा है। कॉइन्स, एमरल्ड, आर्टिफैक्ट्स आर फाउंड रेगुलरली मिलते जा रहे हैं।
Mel Fisher's final years. Mel Fisher died on December 19, 1998 at the age of 76 after 13 years of finding the treasure. 13 साल उस ट्रेजर को ढूंढने के बाद मेल फिशर दुनिया से गए हैं, यानी कि ही लिव्ड टू सी हिज ड्रीम फुलफिल्ड, और जिंदा रहे अपने ड्रीम को पूरा होते हुए देखने के लिए। लेसन्स फ्रॉम मेल फिशर स्टोरी, क्या सीख सकते हैं हम? परसिवियरेंस विंस 16 years of quest, courage through adversity, stay true to your dreams, today is the day. What is your treasure? What dream have you been putting off? आप अपना कौन सा ड्रीम है जिसको पीछे छोड़ते आए हो? What if today is the day? अगर हम ये स्लोगन अपना लें, today is the day. The real treasure isn't just gold, it's the journey, the belief and the refusal to give up. जो इंसान कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, और मेरा बिलीफ है मेरी जर्नी में, और मैं अपने विश्वास पे खड़ा हूं, वही है रियल ट्रेजर, डायमंड। कैन वी बिल्ड दैट काइंड ऑफ रेजिलियंस? क्या उस तरह का रेजिलियंस हम बना सकते हैं? कैन वी शो अप फॉर एवरी प्लान with the same fire, the same faith? Today is the day, and today I will find my next diamond. Today is the day. आज मैं प्लान दिखाऊंगा और आज मुझे अपना नया डायमंड मिलेगा। क्या हर रोज मेल फिशर की तरह वो टुडे इज द डे की टी शर्ट पहन के हम प्लान दिखा सकते हैं और ये बोल सकते हैं टुडे इज द डे, आज मुझे मेरा अगला डायमंड मिलेगा और मिलके रहेगा? सो टुडे इज द डे. That's the story of resilience and perseverance. This amazing story has stayed with me for more than 20 years. और मैं इसको इतना enjoy करता हूँ because I keep getting the mail, so it keeps refreshing for me. So this is amazing, 16 साल तक ये कहना today is the day, and then the critics are there who are criticizing and everybody is saying he is fake, he cannot make it, and his teams run away, उसको छोड़ के भाग गए लोग, fraud हो गया, गवर्नमेंट ने कहा तुमने ढूंढा ये हमारा है, he won that case from the government and he lost his son and daughter-in-law. That's the most tragic part, but then finally he won. And that's amazing. So, if we can really have this kind of resilience, और हर रोज हम कोई भी प्लान दिखाएं और माइंड में यही हो टुडे इज द डे, आज हमें अपना नेक्स्ट डायमंड मिलेगा. इफ वी कैन थिंक लाइक दैट, we can definitely find this treasure of diamond. Everybody has his own vehicle and his own aims and goals, and if we have our goal to find the diamonds in our team, then we'll have to show the plan with the same spirit. Today is the day, and it should be written on the wall, and one day finally you will find your diamond. One day you will find your diamond on your front line or in the depth. डीप सी में मिलेगा या ऊपर मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन मिलेगा जरूर.